أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور بچوں، یہ سورہ ملک کی آخری 3 آیتیں ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت، اپنی حکومت اور بادشاہت کو بیان کیا، اس کے دلائل بیان کیے، انسانوں کے جسم میں موجود دلائل و شواہد بھی ذکر کیے اور آفاق میں، یونیورس میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بھی ذکر کیا. قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر، سمجھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی بیان ہوئی اور ہماری آپ کی نگاہوں اور آنکھوں سے نظر آنے والی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت کا بھی ذکر ہوا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان سب سے اللہ کی معرفت تک پہنچے وہ سیدھا چلنے والا ہے یا اللہ کا انکار کرے وہ. پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور بکھیر دیا، وہ موت کے بعد دوسری دنیا میں، آخرت میں، محشر میں ان سب کو ایک ساتھ جمع کر دے گا. جب قیامت کا ذکر آتا ہے، جب محشر کا ذکر آتا ہے، آخرت کے مختلف مرحلوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جو لوگ ملحد ہیں، ناستک ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ذرا بتائیے، اگر سچے ہو تو اس کی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے وہ دکھا دیجئے، بتا دیجئے. اور اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ اس کا پرفیکٹ علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور نبی کی ذمہ داری ہی نہیں ہے یہ کہ وہ اس کی ڈیٹ بتائے. نبی کا کام تو اللہ تعالیٰ غیب کی، انسانوں کی بن دیکھی جو چیزیں ہیں اس کی خبریں دیتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، خیر اور شر میں فرق کرنا سکھاتا ہے، مفید اور مضر کو بتاتا ہے، کیا چیزیں تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں نفع دینے والی ہیں اور کن چیزوں سے تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں نقصان ہوگا، وہ بتانا نبی کی ذمہ داری ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلم کھلا انجام سے باخبر کرنے والا ہوں، یہی میرا کام ہے. اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی خبریں، نبوت یعنی بڑی خبر، اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام، رسالت یعنی میسج، اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. باقی
जब होना होगा उस वक्त वो हो जाएगा, वो एक आयत में बताया गया। और उस वक्त कहा भी जाएगा कि जो तुम्हारी समझ में नहीं आता था, खोपड़ी शरीफ में नहीं उतरता था, वो अब ये हो गया। लेकिन उस वक्त कोई नजात का चांस मिलेगा नहीं। अब आखिर में 3 आयतें कुल 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 कहकर बयान की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल लास्ट में 3 बातें बताई जा रही है कि इन मुशरिकीन को परफेक्ट ये कह दीजिए, फिर इनको ये कह दीजिए और इनको ये कह दीजिए, इसलिए कि दलीलें बयान हो गई। अब हम इंतजार करते हैं, अब हम तंबीह करते हैं, अलार्म बजाते हैं कि जो आपको समझाना था वो समझा चुके। अब बिल्कुल आखिरी तंबीह दे रहे हैं। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ये लोग ये कहते हैं कि माबूदों को बुरा भला कहते हो तो हलाक व बर्बाद हो जाओगे, और मरकर तुम भी तो मनोमन मिट्टी में दफन कर दिए जाओगे और तुम्हारी भी पकड़ ही हो जाएगी, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा? अगर ये कहते हैं तो इनको कह दीजिए कि अगर अल्लाह मुझे यानी नबी को और मेरे साथ जितने हैं ईमान लाने वाले, मेरी सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाले, इन सबको हलाक कर दे, ये दुनिया उनकी खत्म हो जाए, ये सबके सब मर जाएं। एक ऑप्शन तो ये है, जब भी जिसको मरना होगा, और रहीमना, दूसरा ऑप्शन ये है कि या वो अल्लाह हम पर रहम कर दे। तो हमारा जो मामला है उस अल्लाह के साथ, चाहे वो हमको हलाक कर दे, चाहे वो हमारे ऊपर रहम करे, शफकत करे, मेहरबानी करे, तरस खाए, हमारे साथ नेमतों वाला मामला करे, वो तो हमारे साथ मामला हुआ। सोचने की बात तो तुम्हारी है कि जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे साथ जो होना होगा होगा, लेकिन फिर तुम काफिरों के साथ, अल्लाह का इनकार करने वालों के साथ, अल्लाह को न मानने वालों के साथ जो कुछ भी होगा, जो उसने बयान किया है और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें कौन पनाह देगा? ये भी जरा सोचते हो। समझदार आदमी हालात आने पर, मुसीबत आने पर अपनी फिक्र जल्दी करता है। एकदम एक्सीडेंटली कोई बात होने वाली होती है तब भी वो अपनी फिक्र में मशगूल हो जाता है। जब जलजला आएगा तो आदमी क्या करेगा? अपने आप को लेकर पहले दौड़ेगा और भागेगा। आग लगेगी तो अपने घर को बुझाएगा कि दूसरे के घर को बुझाएगा? जब सबके घरों में आग लगेगी पहले तो आदमी अपने ही घर को बुझाता है। तो जरा अपनी भी फिक्र कर लो, तुम काफिर हो, अल्लाह का इनकार करने वाले इनकारी। अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा और तुम्हें कौन पनाह देगा? जरा ये भी सोचते हो? तुम देशद्रोह करते हो, जब मुल्क का कानून और रूल तुम्हें पकड़ेगा, दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हो, जब दस्तूर तुम्हें पकड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगा, उसके कारिंदे आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे और तुम्हें पकड़ेंगे, जरा सोचो भी तो हमारी फिक्र के दर पे हो, तुम्हारा क्या बनेगा? ये कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। दर्दनाक अजाब से अल्लाह के इनकार करने वालों को कौन बचाएगा? ये लोग कहते हैं कि तुम इतना मचाते हो शोर, आखिरत में ये होगा, मरने के बाद ऐसा होगा, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है, पुल सिरात होना है, ज़क़ूम का दरख्त जहन्नम में है, सांप बिच्छू है, न जाने किस किस तरह के अजाब हैं। ये सारे के सारे मरने के बाद है। मलकुल मौत मरने के वक्त नजर आएगा, कब्र की एक जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, नामे अमाल दिए जाएंगे, पुल सिरात पर चढ़ना है, अल्लाह का दीदार होगा, वहाँ हर तरह के फरिश्ते होंगे, आदम से लेकर अब तक के और आइंदा जितने भी इंसान आएंगे सारे इंसान जमा हो जाएंगे, सबके सामने पूरा हिसाब किताब होगा, कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, स्क्रीन पर पूरी लाइव चलाई जाएगी।
ये सब कुछ जो तुम कहते हो, बहुत सारे मुल्हिद ये कहते हैं कि मान लो अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो काहे को यहाँ मेहनत करें, काहे को यहाँ सब चीजें माने, क्यों नमाज पढ़ने की मशक्कत करें, क्यों इतने सारी पाबंदियों को झेलें जो इस्लाम बताता है। अगर वहां जाके कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो सब माना हुआ मेहनत की हुई बेकार चली जाएगी। हम कहते हैं और अगर वहां जाकर सब कुछ हुआ तो, हम यही कहते हैं कि वहां जाकर हम तो मानते हैं सब कुछ होने वाला है, तुम कहते हो कुछ भी नहीं हुआ तो, हम कहते हैं जरा अक्लमंद सोचो अगर सब कुछ हुआ तो, सब कुछ हुआ तो हम वही कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा और तुम ईमान ले आओगे तो सब कुछ हुआ तो जन्नत में जाओगे। और मान ले थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी नहीं हुआ तो जो कुछ भी तुम यहाँ मेहनत करोगे वो बेकार तो फिर भी नहीं जाएगी, इसलिए कि इसकी वजह से दुनिया की इज्जत मिलेगी, नेमत मिलेगी, सुकून मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारोगे, एक अच्छे नागरिक और अच्छे समाजी के एतबार से जिंदगी गुजारोगे तो उसका फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर सब कुछ हुआ और यकीनन सब कुछ होने वाला है और तुम कुछ भी लेकर नहीं गए वहां तो क्या होगा? जब तो जहन्नम है ना। तो अक्लमंद तो वही है कि जो बात का सोचकर पूरा खुत्ता बनाता है, परफेक्ट प्लानिंग करता है, वही तो अक्लमंद है। ऐसे तो कैसे आप घर बनाते हैं, घर तामीर करते हैं, नक्शा बनाने के लिए इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, घर के ऐसे ऐसे बनाना है उसका मशवरा लेते हैं, सारी चीजें परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कितने खड्डे खोदने चाहिए, बीम कितने डालने चाहिए, तो सोचते हो ना कि अगर ज़लज़ला आया तो, यही सोचकर तो घर बनाते हो। 50 साल के बाद ऐसा ऐसा आया तो क्या होना चाहिए है ना। जापान बिल्डिंगें बनाता है, अगर आप उसको रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि वो कैसी कैसी सिस्टम बनाते हैं। वो इस तरह जमीन में सब सिस्टम बनाते हैं कि अगर इतने पॉइंट का ज़लज़ला आया भी तो उसके बावजूद वो बिल्डिंग सिर्फ हिलकर झूले खाकर अपनी जगह रहेगी, ढह नहीं जाए। कितनी प्लानिंग की जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो वहां तुम्हारी खोपड़ी खूब चलती है और आखिरत में आकर तुम्हारे दिमाग में पंक्चर पड़ जाता है। बल इद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरह, कुरान यही कह रहा है, इद्दारक उनका इल्म कुरान के बाद में नहीं चलता, आखिरत के बाद में नहीं चलता। उनका ज्ञान, उनकी रिसर्च, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सोचती है तो दुनिया को लेकर। तो तुम छोटे से कुएं के मेंढक की तरह कुएं के बारे में सोचते हो, तो कुएं के बाहर तो तुम ही कह रहे हो कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो इसके आर पार जो कुछ होने वाला है उसको भी तो सोचा करो। वहां सोचते हो कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक पुल पटरी डालना चाहते हो ट्रेन की तो कितनी सारी तरह की चीजें सोचते हो। एक घर बनाना चाहते हो तो कितनी तरह का सोचते हो। तो इस मरने के बाद की भी तो एक जिंदगी है, वहां की तामीरात के लिए, वहां की जिंदगी के लिए भी तो सोचा करो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो अक्लमंद तो वही होता है कि जो तमाम इम्कानात को जहन में रखकर भी उसके मुताबिक अपनी तैयारी करता है। इसलिए भलामण इसी में है, अच्छाई यही और खूबी यही है कि आदमी ईमान ले आए। ये अक्लों को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस तरह अपील करते हैं। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फी ज़लालिन मुबीन। एक जो क्वेश्चन खड़ा किया था, जो सवाल किया था, उसका जवाब दे रहे हैं। कुल हुवर्रहमान, पनाह देने वाला कौन है? वो रहमान है। हुवर्रहमान, वो एक अकेला, इसमें तौहीद भी आ गई, उसकी रहमत और शफकत की सिफत भी आ गई कि वो रहमान है, वही सिर्फ पनाह देने वाला और बचाने वाला है। और उसको तो तुम मानते नहीं तो फिर वो तुमको कहां से बचाएगा और कैसे पनाह देगा? रह गया तुम हमारा पूछ रहे थे कि हमारा क्या बनेगा, इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय, तो फिर हमारा मामला तो यह है कि उसी
बिर्रहमान पर आमन्ना बिही, हमारा तो ईमान है, हम ईमान ले आएंगे। निगाता दिल का यकीन बचाने के मामले में उसी के साथ जुड़ा हुआ है। वअलैहि तवक्कलना, और उसी पर भरोसा है। लिहाजा दिल के यकीन के साथ साथ दिल का भरोसा उसी की जात पर है। यकीन है कि वही बचाएगा और भरोसा है कि वो बचाने की कुदरत रखता है। सूरत के शुरू में बता दिया कि पूरे यूनिवर्स पर कुदरत और ताकत और बादशाहत रखता है और उसके अलावा कोई पनाह देने वाला नहीं है। तो अब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा और कौन पनाह देगा? वही पनाह देगा। और किसको देगा? आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए हैं तो वो हमको बचाएगा। हम उसके लोग हैं, हम उसके मानने वाले हैं, उसकी पार्टी के लोग हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह की पार्टी हुई ना जो अल्लाह को मानेंगे, और अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह की पार्टी ही कामयाब होगी। कोई भी पार्टी कामयाब होती है तो अपने लोगों ही का सपोर्ट करती है ना, तो फिर क्या होगा? अल्लाह को जो मानने वाले होंगे, अल्लाह को माना तो अल्लाह के लोग हुए, समझदार हुए, तो उनको जन्नत देगा। वो अलैहि तवक्कलना, और फिर पता चलेगा तुम अभी वो समझते हो कि तुम बड़े जीनियस हो और समझदार हो। पता तो तब चलेगा जब आंख बंद होगी कि कौन समझदार था। फसतअलमून, जल्दी ही तुमको पता चल जाएगा। मन हुवा फी दलालिन मुबीन, कौन खुली हुई गुमराही में था। तुम हमको बेवकूफ कहते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन बेवकूफ था। फसौफ तरा इज़ा इनकशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू, जल्दी ही पता चल जाएगा जब गुबार छटेगा, जब गर्द गुबार दूर होगा और सीन क्लियर होगा तो पता चलेगा, मामला साफ होगा तो पता चलेगा कि जिसके ऊपर तुम बैठे हो तुम्हारे नीचे गधा खाया घोड़ा, इसका पता गुबार हटने पर चलेगा। इसलिए कि सारे के सारे सवार हैं और गुबार उड़ रहा है टापों की वजह से, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन घोड़े पर बैठा है और कौन गधे पर बैठा है। ये गुबार हटेगा ना दुनिया का, तो फिर आखिरत में पहुंचकर पता चलेगा कि कौन सी सवारी पर सवार थे, गधे पर सवार थे या घोड़े पर सवार थे। वहां जाके पता चलेगा कि कौन बेवकूफ था। ऐसे ही थोड़े ना अल्लाह कहते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, जिनको समझदारी है उनके लिए इसमें निशानियां है। लिहाजा इन निशानियों से जो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेते हैं, हकीकत में वो समझदार है। जीनियस कहलाने के काबिल हकीकत में वो है। फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिन मुबीन, कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन माईन। सब कुछ समझाने के बाद बिल्कुल सूरत की लास्ट आयत में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, एक सवाल छोड़ दिया है, इंसान सोचता रह जाए। जबरदस्त सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने पेश कर दिया है। तुम्हारी सबसे ज्यादा अहमियत वाली जरूरत क्या है? पानी है। पानी सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरी चीज है, उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पीने का काम आता है, तुम्हारे कपड़े धोने के काम आता है, बर्तन साफ करने के काम आता है, हाथ मुंह धोने के काम आता है, तुम्हारे गुसल करने के काम आता है, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम आता है, तुम्हारी सब्जियों के। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन है? पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। साइंसदान इस जमीन के अलावा पता नहीं कौन कौन से सैयारों को तलाश कर रहे हैं कि उनको वहां जाना है कि जमीन क्यों बर्बाद हो गई, ऐसा खत्म हो गई। पॉसिबिलिटी तो वो भी बताते हैं कि खत्म होने वाली है, ऐसा 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 हो जाएगा, किसी दिन जमीन खत्म हो जाएगी। लाओ तलाश करते हैं इस यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में कहां पर ऐसा सैयारा है। सोलर सिस्टम में कोई सैयारा ऐसा नजर नहीं आता जहां पानी है। तलाश करते हैं, कभी हजारों करोड़ों साल पहले वहां पानी हुआ हो। ढूंढते हैं, इतने लाइट ईयर दूर एक सैयारा है, वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद पता 1 लाख लाइट ईयर कितना होता है? जमीन सूरज से लेकर जमीन तक जो किरणें आती है, सूरज लाखों किलोमीटर दूर है। कितने मिनट में आते हैं बच्चों? 8, है ना? 8 मिनट में लाइट वहां से लेकर यहां तक पहुंचती है। सूरज से इतना दूर है, इतना दूर है।
तो लाखों लाइट ईयर कैसे जाओगे नहीं वहां, लाखों लाइट ईयर तक दूर कैसे? जब पानी तलाश कर रहे हैं कि वहां पानी हो, इसलिए कि जहां पानी होगा वहां जिंदगी होगी, जहां पानी होगा वहां जीवन होगा, हयात होगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला एक क्वेश्चन करते हैं, कुल ए नबी आप जरा इनसे ये कहिए, और आई तुमको क्या लगता है, क्या सोचते हो तुम, इन अस्बह माउकुम गौरन, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम्हारा पानी माउकुम अलमानी का पानी वो जो तुम्हारा है, इस्तेमाल का है, तुम रोज उसको इस्तेमाल करते हो, अस्बह कहा किसी दिन रात को तुम सो तो बहुत खूब इस्तेमाल करने वाले थे, सुबह को पता चला कि पानी है ही नहीं, जितना पानी आसपास सब जगह पूरी जमीन पर था वो जमीन की तहों में चला गया, गौरन पानी की तहों में चला गया, समंदर सारे जमीन फटी और समंदर को निगल लिया, अंदर चला गया। तुम्हारे जितने तालाब थे, चश्मे थे, झरने थे, हौज थे, बड़े सरोवर थे, झीलें थी, नदी थी और नाले थे, नहरें थे, सबका पानी, कुएं का पानी जमीन में अंदर निगल लिया। कर सकती है जमीन, उगाल भी सकती है, उगल भी सकती है, निगल भी सकती है। समंदरों के ऊपर से बाप बनकर ऊपर उड़ता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला बरसा देते हैं, जमीन उसको जज्ब करती है और कुछ दूरी तक, कुछ मीटर तक जमीन अंदर पानी को जज्ब करती है। अगर चाहे अल्लाह तबारक व तआला, सब पर कुदरत है ना, पहले ही बता दिया, पूरे यूनिवर्स पर कादिर है, हर तरह की अल्लाह ताला को कुदरत है, इसीलिए तो हम उसको अल्लाह मानते हैं। जमीन अगर पानी पूरा अंदर खींच ले, चला जाए, बताओ कैसे जियोगे? अल्लाह ये फरमाते हैं आखिरी आयत में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो ऐसा पानी जो चश्मे जैसा तुम्हारी आंखों से नजर आए, तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल हो, हमें बताओ तुम्हारे पास कौन लेकर आएगा? इसलिए कि वो जमीन में चला गया, जमीन ने उसे पकड़ लिया, तुम्हारी ताकत दस्तरस से वो बाहर चला गया। अब जमीन की तहों में पहुंचा देने के बाद, साइंसदानों से हम कहते हैं कि प्लेट्स के नीचे चला जाने के बाद, जहां जमीन का लावा है वहां उतने किलोमीटर नीचे उतार देने के बाद पानी अगर पहुंचा दिए तो बताओ कौन लाएगा वहां से? कैसे की बात नहीं है, वो तुम्हारी दस्तरस में है ही नहीं, कौन ला सकता है? इसलिए तुम सबसे इंसान हो, तुम्हारी कुदरत महदूद है, तुम एक कुआं खोल सकते हो, तुम बोर कर सकते हो। रशिया ने सबसे लंबी पाइपलाइन जमीन के अंदर डाली है, जितना दूर तक वो जा सका है, 12 किलोमीटर गया, उससे आगे उसके भी बस का नहीं हुआ है, उतना गया, उसके नीचे पहुंचा दिया। क्या करोगे? कैसे लाओगे? है कोई जो लाएगा? अल्लाह उसको कहते हैं कि कौन सी मूवमेंट इसको दोबारा दे सकती है? फमन यातीकुम बिमाइन मईन, झरने जैसा, चश्मे जैसा, सबके इस्तेमाल के काबिल पानी मन यातीकुम, तुम्हारे पास कौन लेकर आएगा? जवाब नहीं दिया, आप खुद समझो, अब अल्लाह की मारिफत हो गई है, अल्लाह के अलावा है कोई? अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, अल्लाह कहते हैं पानी तो हम बरसाते हैं, हम पैदा करते हैं, तुम बनाते हो या हम बनाते, तुम बरसाते हो या हम बरसाते, पानी तो हम बरसाते हैं। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, और हर सजीव चीज को, जिंदा चीज को हमने पानी से बनाया है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं हर जिंदा चीज को हमने पानी से बनाया है, तो ये पानी ही खत्म हो जाएगा तो बताओ इस जमीन पर जिंदगी बाकी रह सकती है? अब जीने के लिए तुम्हें पानी कौन ला कर देगा, ये बताओ? ये सवाल छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए कहते हैं कि इस आयत को पढ़ने के बाद हमें अहले ईमान को कहना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सारे जहानों को पालने वाले हैं जो ये पानी लेकर आएंगे, जो ये पानी हमें अता फरमाते हैं, वरना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आखिर में 3 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुफार और मुशरिकीन को और दुनिया के तमाम इंसानों को बताई गई, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हो जाए। और उसमें सबसे आखिर में क्वेश्चन छोड़ दिया गया, कुल अराइतुम, बताओ तो सही, इन अस्बह माउकुम गौरन, और आदमी जब रात को सोता है तो सेहतमंद होता है, और दिन को जब उठता है सुबह में तो क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है।
कभी गर्दन अकड़ जाती है तो परेशान हो जाता है आदमी, बात करता है इधर और देखता है इधर, ऐसा हो जाता है। हंसते भी हैं, बच्चे होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देता है, उसकी वजह से वो क्या होती है, दवाई में दर्द जो के लिए पेन किलर होता है, दर्द थोड़ा सा कम होता है, वरना वो 2 दिन के बाद ही ठीक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बताया है, मन अस्बह आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही फक़द हीज़त लहु दुनिया कुल्लुहा वफ़ी रिवायतिन हीज़त लहु दुनिया बिहदाफिरिहा। क्या मतलब? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी सुबह में इस हाल में उठे कि अपने बाल बच्चों, अपनी बीवी, रिश्तेदारों, मुताल्लिकीन, आसपास पड़ोसों के दरमियान वो अमन व अमान के साथ हो, चैन सुकून के साथ हो, उसके आजू बाजू में कुछ नहीं हुआ, उसके पड़ोसियों में कुछ नहीं हुआ, उसके रिश्तेदारों में सब सही सलामत है ना। एक दिन अचानक किसी दिन ऐसा होता है कि हम सुबह में उठते, मोबाइल पर देखा घंटी बजी हुई है ना, फजरी अगर किसी वक्त मोबाइल बजता है तो हम चौंकते भी है कि ये 6 बजे कौन हमत पड़ जाए छुए इनके, ऐसा सारा निजाम हम दरहम बरहम कर देते। किसी का इंतकाल हुआ तो चलो वहां जाना है तो 3 के लिए पहुंचते हैं, पता चला कि रात को अच्छा खासा सोया था, फुलाने को ऐसा हो गया, कैसी तकलीफ हो जाए। रिश्तेदार, अगर तुम्हारे अंदर आसपास रहने वाले सब रिश्तेदार, सब मुताल्लिक़ीन अमन व अमान के साथ है, सुबह में जब उठे तो नंबर 1। और दूसरी बात मुआफ़न फी जसदिही, अपने जसद और अपने जिस्म में सेहत व आफियत के साथ है। आदमी सुबह में बुखार चढ़ गया, बीमार पड़ गया, कई लोगों में ऐसा होता है अचानक सुबह में उठे कमर ऐसी जकड़ गई कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाए, दोपहर तक ऐसे ही लंगड़ाते जरूरत फारिग होने के लिए भी जाना पड़ता है ना। क्या से क्या तकलीफें हो जाती है सुबह ही सुबह, अगर कोई आदमी अपनी सेहत और आफियत के साथ उठा। और तीसरी बात उसके पास उस दिन की खुराक है, एक दिन खा सके, सुबह शाम, दोपहर में और शाम में खा सके, इतना साजो सामान ग़िज़ाएं हैं उसके पास, तो उसके पास सारी दुनिया जमा हो गई। हकीकत है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, हकीकत है, सारी दुनिया जमा हो गई। इसलिए कि अमन से ज्यादा इस दुनिया में आदमी को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा अमन चाहिए। तंदुरुस्ती से बढ़कर और क्या चाहिए? कोई चीज नहीं चाहिए। अपने आप में तंदुरुस्ती हो, अमन हो, और अपने मुताल्लिकीन रिश्तेदारों जिनसे दिल का ताल्लुक है वो अमन में हो, उनको कोई तकलीफ न हो। ये 2 चीजें तो हो गई, यही चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? खाने पीने के लिए चाहिए तो वो एक दिन का ही चाहिए। आज के दिन उतना ही खाएगा जितना आज के दिन खा सकता है। आज के दिन 10 दिन का नहीं खा सकता आदमी। 10 दिन का हमारे घर भरा हुआ हो, हरज नहीं है उसमें। 1 साल का भरा हुआ हो, हरज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात को साल भर का अनाज और गल्ला दे देते थे ताकि उनके यहाँ महफूज है, वो सदका कर देती थी बहुत सारा, वो अलग बात है, कोई हरज नहीं है। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। लेकिन आदमी एक दिन में खाएगा कितना? एक ही दिन का खाएगा, एक दिन में 2 दिन का भी खा सकता है। आज हमने जितना खाया वो उतना ही खाया जो आज हमारे खाने के लिए मुकद्दर था, तो आज का मुयस्सर है, तो फिर कल तो फिर हो जाएगा ना दोबारा। मन अस्बह आमिनन फी सिरबिही मुआफ़न फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही, कल का फिर होगा। तो आज का तो आज महफूज है, तो पूरी दुनिया उसके पास हुई ना। अपने बारे में सेहत और तंदुरुस्ती है, आसपास के बारे में अमन व अमान है, और एक दिन का खाना पीना है, तो पूरी आज की दुनिया जितनी उसको जरूरत थी उसके पास जमा हो गई। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसी तालीमात दुनिया का कौन सी यूनिवर्सिटी देगी? ये तालीमात कुरान देगा। ऐसी तालीमात दुनिया का कौन सा आदमी दे सकता है? ये रसूलुल्लाह दे सकते हैं। कितने भी बड़े बड़े मुस्लिम और रिफॉर्मर हो, कितने भी बड़े बड़े ज़ईम और लीडर हो, लेकिन ये तालीमात उनके पास नहीं है जिससे तबीयत को सुकून मिल जाए और रूह को सुकून मिल जाए। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत है इस बात की हम कुरान करीम से बराह रास्त जुड़े।
درس قرآن سے ہم صحیح معنی میں استفادہ کرنے والے بنے، ہماری اولادیں قرآن کو سیدھے سیکنڈ ہینڈ نہیں سیدھے حاصل کرنے والی بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے ہمارے بچے کو عربی آنا چاہیے۔ عربی زبان ایسی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ وہ سیکھنے میں بڑی دلچسپ لگتی ہے اور بہت جلدی آ جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ کی زبان، یہ قرآن کی زبان، یہ حدیث کی زبان، یہ اسلامک لا یعنی فقہ اسلامی کی زبان، یہ جنت کی زبان ہے۔ جنت میں بھی عربی بولیں گے، یہ جنت کی زبان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، اور ایسی آنی چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں اور اس میں جو لکھا ہے سیدھے سیدھے ہم عربی میں سوچنے والے ہو، سیدھے سیدھے ہمیں وہ سمجھ میں آئے۔ کیا ایسا آنا چاہیے یا نہیں؟ ہم اہل ایمان میں سے ہر ایک کے اندر اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ نہیں کہ ہم سیدھے سیدھے قرآن سے اس کا علم حاصل کریں۔ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے وہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے۔ لہذا صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے عربی سیکھیں، ہمارے اسکول کے اور یونیورسٹی اور کالج کے پڑھنے والے بچوں کو بھی عربی آنی چاہیے، ان کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں سیدھے سیدھے حاصل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ سیدھے سیدھے پڑھ کر مجھ تک وہ میسج پہنچے۔ جس زبان میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ تک میسج پہنچایا، وہ زبان، وہ میڈیم عربی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اسے روح الامین یعنی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی مبین زبان میں، واضح اور دونوں کھلی ہوئی بلیغ عربی زبان میں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر لے کر اترے ہیں، انہوں نے آپ کے دل میں ڈال دیا۔ پھر آپ کے دل میں جو علم آیا، علم کہاں آتا ہے؟ اس سے پتا چلا علم کہاں آتا ہے؟ علم زبان پر نہیں ہوتا، علم دل میں آتا ہے، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ نور دل میں اترتا ہے۔ پھر اس دل میں اترے ہوئے نور کو ہم زبان کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، کانوں تک پہنچتا ہے اور کان کے ذریعے پھر دل میں جاتا ہے، تو ہی یہ علم ہے، تو ہی یہ نور ہے۔ اسی لیے تو کہا السمع والابصار والافئدہ، کل سمجھایا تھا کہ دو ذریعے ہیں، آنکھ اور کان، اور زبان سے ہم اس کو بولتے ہیں اور اس کا پروسیس ہوتا ہے سمجھنے کا وہ دل دماغ کے اندر جا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میڈیم استعمال کیا وہ عربی کا استعمال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ تک پہنچایا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے امت تک پہنچا دیا۔ لہذا ہم فرسٹ ہینڈ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو فرسٹ ہینڈ سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو عربی آنا چاہیے نا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، آپ کے دربار سے قرار مجرم ہیں، یا اللہ آپ کی بڑی نافرمانیاں کی ہے، یا اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ 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 آپ نے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے، یا اللہ دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی، یا اللہ سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان عطا فرمائی، کلمات اور الفاظ کی ترتیب سکھائی، یا اللہ سوچنے سمجھنے کو دل عطا فرمایا، یا اللہ ہاتھ دیے، پیر دیے، ہاضمہ دیا، دانت دیے، یا اللہ تمام نعمتوں سے نواز دیا، یا اللہ ہم تو ناقدرے ہیں، یا اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، صحیح معنی میں ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، شکر قولی اور شکر عملی دونوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری کلام پاک سے وابستہ کر دے، یا اللہ اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس سے ہدایت لینے والا بنا،
یا اللہ ہمارے یقین میں اضافہ فرما، ہماری ایمانی اعمال میں اضافہ فرما، ایمان کے ثمرات میں اضافہ فرما، ایمان کی حلاوت میں اضافہ فرما، ایمان رگڑ رگڑ کر ہمارے قلب میں ایسے چپکا دے کہ دل کو اس کی مٹھاس محسوس ہونے لگے، نمازوں میں دل لگنے لگے، تلاوت میں دل لگنے لگے، یا اللہ مسجدوں میں ہمارے دل لگنے لگے، مسجد سے باہر جائیں تو ہمیں لگے کہ کہاں آ گئے، باہر بھی جائیں تو دل ہمارا مسجد میں اٹکا ہوا ہو، قرآن سے لٹکا ہوا ہو، یا اللہ ایسے ہمارے دل بنا دے، یا اللہ ایسے ہمارے دل بنا دے، وہ اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ وہ خیر پیدا فرما دے، یا اللہ عزائم میں خیر و برکت عطا فرما، نیتوں کو صالح بنا دے، درست فرما دے، یا اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتے، تجھ سے تیرا تقوی مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا خوف مانگتے ہیں، تیری خشیت مانگتے ہیں، قول و عمل کی سچائی مانگتے ہیں، یا اللہ صدق مانگتے ہیں، قول و عمل کی امانت داری مانگتے ہیں، یا اللہ دولتیں تو یہ ہے کہ سچائی ہو، امانت داری ہو، خیر خواہی ہو، نصیحت ہو، یا اللہ ایک دوسرے کی محبت سے سینے لبریز ہوں، ایک دوسرے کی رعایت ہو، پاس و لحاظ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اخلاق فاضلہ سے قلوب مزین ہو، اعمال صالحہ سے اعضائے بدن سنورے ہوئے ہو، مزین ہو، یا اللہ ایسا پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ تعلقات نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ باہم جوڑ پیدا فرما، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے، یا اللہ تیرے پاس پہنچنے سے پہلے، جنت سے پہلے اس دنیا کے معاشرے اور سماج کو جنت نشان بنانے کی اور اس میں رہنے سجنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے، پورے مجمع میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، ہر ایک کی دلی مرادیں پوری فرما دیجیے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تمناؤں سے دل بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے خزانے لبریز ہیں، تو جتنا بھی دے گا کچھ بھی خالی ہونے والا نہیں ہے، ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا، یا اللہ بھر بھر کر عطا فرما دیجیے، بھر بھر کر عطا فرما دیجیے، بھر بھر کر عطا فرما دیجیے، الہی جئناک تائبین فلا تردنا صفرا ولا خالیا ولا خائبین، یا اللہ تیری توفیق سے ایک صورت مکمل ہو گئی، اس میں تیری قدرت، تیری حکومت و بادشاہت، تیرے دلائل قدرت سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق حاصل ہوئی، یا اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری فرما دیجیے، یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اس میں صفات قبولیت رکھ دیجیے، یا اللہ اس میں صفات قبولیت رکھ دیجیے، یا اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے حقیقی معنی میں ایک لفظ بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تیری توفیق سے ہوتا ہے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ نامہ اعمال میں بھاری بھرکم بنا کر اسے محفوظ کر لیجیے، یا اللہ ظاہر ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ ہم تیرے در سے کہیں جانا نہیں چاہتے، یا اللہ تیری محبت کسی سے محبت کرنا نہیں چاہتے، تیرے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہتے، تیری ذات صفات سے وابستہ کر دیجیے، تیرے حبیب کا تعلق نصیب فرما دیجیے، جنت میں تیرے حبیب کی رفاقت عطا فرما دیجیے، تیرے پاکیزہ حبیب کے پاکیزہ صحابہ کا ساتھ فرمائیت عطا فرما دیجیے، جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، رحمت کا اشرا ختم ہونے کو ہے، ہم سب کو رحمت کا مستحق بنا دیجیے، یا اللہ مغفرت عطا فرما دیجیے، جنت کا پروانہ دے دیجیے، تیرے دیدار کا پروانہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ تیرے دربار میں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، ہاتھ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، تیری محبت عطا فرما دیجیے، تو فیصلہ کر دے کہ ہاتھ رکھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت ہو گئی ہو، یا اللہ بوڑھوں کی، جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی مغفرت فرما، تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.